Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. All praise be to Allah. Dear first year students, I hope that you will be doing good in these days of pandemic and vacations. As first of all, I congratulate you upon the beginning of Ramzan. So hopefully you will be doing good in your lectures as well. As far as all the subjects are concerned, so is English. So beta, as per schedule in English, we have to start unit 2 again. This is re-revision. Almost third time we are revising all the things that we have read for the once. Okay, we are third time revising these, and as per schedule we have to revise His First Flight unit 2 by Liam O'Flaherty today. Before, in your homework, you had revised question number 1, 2 and 3 of the same unit, and in the classwork, so this time we have to just take question number 4, question number 5, 6 and 7. So let's start with question number 4. Before going to this, I would like to gather some points in your minds regarding the lesson. His First Flight, it encompasses all the ideas, all the views that we have to face the hurdles. Whatever we are doing for the first time, it creates hurdles in our minds. Okay, we cannot start anything without determination. If we are not determined, though we have potential, though we have all the things, all the necessities that it required, but if we don't have some courage, some self-confidence, and if we cannot muster up these things, we cannot even take a step. So in the form of a young seagull, the author wants to convey the message to its readers that we should have courage before starting anything. We should be confident, we should have self-confidence, we should be determined in doing something. यानी हमें वो एक जस्ट एक क्रक्स बताता है कि we have to face, we have to encounter all the hardships that come in our way if we want to achieve some success in our life. अगर हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, हम तब तक कुछ काम नहीं कर सकते जब तक हम डिटर्मिन्ड नहीं हैं, हमारा पुख्ता इरादा नहीं है, फर्म बिलीव नहीं अपने आप पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद एतमादी नहीं है, हम में करेज हौसला नहीं किस चीज़ को, या हमें मुश्किलात से सामना करने की हम में पावर नहीं है, तो तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते. So beta, this was the crux, this was the theme of the lesson. Along with this, the writer also shares us another theme, that is handling and sharing responsibilities. As we have seen that in the lesson, the parents, they had the responsibility. First they nourished their children, okay, they just reared them, and when they saw that they have come to the point at which they can be taught when they are doing something by their own self, they are now able doing things by their own self. So then they taught them the lesson of life, that they should start doing things by their own, so that they may not be dependent in their entire life, rather they should own their responsibilities, they should search their food for themselves and also take good care of them by their own self. So this was the major theme कि जब responsibilities sharing और handle की जाती हैं responsibilities, यानी इस lesson में कैसे हम बता रहे हैं कि एक parents जो हैं वो पहले own करते हैं उन responsibilities. उनके बच्चे थे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उन्हें सब खाना देते हैं, नर्चर करते हैं, उनकी ग्रोथ में उनको हेल्प आउट करते हैं, उनको फूड फ्राहम करते हैं, सब कुछ करते हैं. लेकिन देन दे शेयर, देन दे हैंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम, फिर उनको उनकी जिम्मेदारियां सौंपते हैं. दैट अब आपने सारी उम्र डिपेंडेंट ही नहीं रहना, बल्कि यू हैव टू टेक बोल्ड स्टेप्स. सो इसी में ही हमें वो एक यंग सीगल को लेकर आता है कि वो जो उड़ नहीं पाता, वो हौसला नहीं जता पाता, उसके साथ के बहन भाई उड़ते हैं. फिर व्हेन यू एनकाउंटर, व्हेन यू फेस हार्डशिप्स, देन यू गेट रिवार्ड.
अब कैसे कि वो देखते हैं कि उसके भाई जो उड़े हैं उन्होंने ओवरकम किया उन हर्डल्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन किया है, फिर उनको रिवार्ड भी मिलता है, वो अपने मर्ज़ी से खाते हैं, अपनी खुशियाँ मनाते हैं। और ये जो एक सीगल था जो उड़ नहीं सकता था, ये क्या करता है, ये उनको देखता है, भूखा भी रहता है, ब्लेजिंग सन भी होता है, तपश भी झेलता है, लेकिन आखिरकार इसको क्या करना पड़ता है, वो फर्स्ट बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है। दैट इज़ नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल। सो दिस वॉज सम बैकग्राउंड ऑफ द लेसन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा, कहता है डिस्क्राइब इन योर ओन फीलिंग्स एक्शंस, डिस्क्राइब योर ओन इन योर ओन वर्ड्स द फीलिंग्स एक्शंस एंड थॉट्स ऑफ द यंग सीगल सून आफ्टर हिज फॉल। राइटर अब लेसन पढ़ाने के बाद, बताने के बाद, वो सारी स्टोरी बताने के बाद कहता है कि आपके ख्याल में अपने अल्फाज में बयान करें उस यंग सीगल की फीलिंग्स, जज्बात को, उसके एक्शंस को, उसकी थॉट्स को, कि जब वो गिर गया, यानी जब उसने फर्स्ट प्लंज ली, पहली दफ़ा वो हवा में गोताज़न हुआ, तब का कहता है वो सारी हमें उसकी फीलिंग्स बताएं। तो हम कह सकते हैं कि सून आफ्टर हिज फॉल फर्स्टली ही वॉज अ बिट अफ्रेड, फियर्ड, ठीक है, फॉर अ वाइल अ टेरर सीज्ड हिम इमीडिएटली बट इट हैपन फॉर अ मोमेंट ओनली। कि पहले हमने राइटर क्या बताता है कि एकदम से उसको खौफ ने एकदम से सीज ही कर दिया, उसको समझ ही कुछ नहीं आती, माउफ कर दिया उसका दिमाग, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद ही फील दैट हिज विंग्स आर स्प्रेड, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद उसने ये महसूस किया कि उसके पंख फैले हुए हैं, पर फैले हुए हैं। फिर उसने क्या किया कि ही फेल्ट दैट हिज विंग्स आर कटिंग थ्रू द एयर। फिर उसने महसूस किया कि उसके पर जो है वो हवा में क्या कर रहे हैं, हवा को चीर के, हवा के मुखालिफ रस्म में आगे बढ़े हैं। एंड ही इज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, और उसने देखा कि अब वो ऊंचा उड़ रहा है और एकदम से नीचे आ रहा है हवा में। अच्छा, और ये जो टेरर था, इट डजंट लॉन्ग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए उसके ऊपर तारी रहा, या खौफ उड़ने का या गिर जाने का। He feels a bit dizzy, then he flaps his wings and soars upward. उसने देखा कि उसके पर ठीक है काम करें, तो उसने अपने परों को दोबारा पर बढ़ाया और ऊंचा उड़ने लगा। अच्छा, अब वो अपनी फ़्लाइट को फिर इंजॉय करने लगता है, फिर वो बोलता भी है, चिल्लाता भी है अगेन एंड अगेन, और ऊंचा ऊंचा उड़ता है। फिर वो एक ऊंची आवाज़ निकालता है, गा 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 गा। ही कमेंसेस हिमसेल्फ टू डाइव सोर कर्व्ड श्रिंकिंग श्रिली। फिर वो आवाज़ें मारता हुआ कभी ऊंचा जाता है, कभी नीचा जाता है, फिर कभी एक साइड पे करवट लेता है, कभी कैसे, यानी उड़ना स्टार्ट कर देता है। ये उसकी सारी फीलिंग्स थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कुड बी द ऑथर्स पर्पस बिहाइंड राइटिंग द स्टोरी इज फर्स्ट फ्लाइट। अब ऑथर का पर्पस क्या था जी? ऑथर का पर्पस हम कह सकते हैं, वी मे से दैट द पर्पस ऑफ द ऑथर लाइम ऑफ फ्लेहर्टी, ही वांट्स टू इंप्रेस अपॉन द रीडर्स दैट फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द बोल्ड। किस्मत हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो बहादुर होते हैं, जो खुद स्टेप्स लेते हैं। इसी वजह से देखें, अल्लाह पाक ने भी कहा ना कि अल्लाह उन कौमों की हालत नहीं बदलता जब तक किसी कौम को अपनी हालत खुद बदलने का ख्याल ना हो। यानी योर बोल्ड स्टेप इज़ नेसेसरी, दैट इज़ द पार्ट एंड पार्शल फॉर द चेंज, दैट इज़ मैंडेटरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पर्सनल स्ट्रगल। ठीक है, अब इस स्टोरी में यंग सीगल से ऑथर ये आइडिया कन्वे करना चाहता है दैट द जर्नी ऑफ द सेवरल माइल्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप, कि बहुत लंबा सफ़र भी जो है वो एक कदम उठाने से ही उसका आगाज़ होता है। यानी आप स्टार्ट तो करें, ठीक हो गया। अच्छा, वही बातें वो हमें क्या लेसन देता है, वन नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट टू टेक बोल्ड स्टेप्स इन लाइफ, इट्स ऑल अबाउट ओवरकमिंग फियर्स। हमें इस लेसन में, इस स्टोरी में बताता है कि हमने अपने फियर्स को ओवरकम करना है। वो अपने रीडर्स को ये बताना चाहता है दैट यू शुड बी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपको अपने आप पे इंसार करना चाहिए, खुद एतमादी आप में होनी चाहिए। ही वॉन्ट्स दैम टू एक्सप्लोर देयर कैपेबिलिटीज एंड यूटिलाइज देम इन ऑर्डर टू फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ। वो ये बताना चाहते हैं कि रीडर ये समझे कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनको एक्सप्लोर करे, उनको यूटिलाइज करे, ज़िंदगी में चैलेंजेस को फेस करे, रादर टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों पे निसार करने से अपनी जो पोटेंशियल हैं उनको एक्सप्लोर करे। ठीक है, ही मीन्स टू से गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने के ख्वाहां होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटीट्यूड ऑफ द फैमिली मेंबर्स बिफोर एंड आफ्टर द फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल इन हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस लेसन में कहते हैं उसकी फैमिली का जो कंट्रास्ट है, जो एटीट्यूड है, उसके बारे में बताएं। सो फ्लाइट से पहले
वो सारे उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे थे, एंग्री थे, रूड थे, अच्छा उसको टॉन्ट कर रहे थे, उसके बाद उसकी कावर्डिस का उसे टॉन्ट कर रहे थे, अच्छा वो ब्रिंक ऑफ द लेज तक आता फिर वापस चला जाता, वो कैसा था, फियरी था, वो फियरफुल था, अफ्रेड था, लेकिन उसके फिर वालिदैन ने भी उसको स्कोल्ड किया, बुरा भला कहा, लेकिन उसको थ्रेट भी किया फिर साथ में कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो हम तुम्हें खाना नहीं दे। फर्स्टली बिफोर टेकिंग दैट प्लंज, बिफोर टेकिंग दैट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट, उनका रवैया ऐसा था। अच्छा लेकिन बट व्हेन ही टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट देयर मूड्स एंड एटीट्यूड्स चेंज इमीडिएटली, उनका एकदम से रवैया ही बदल जाता है, उनका मूड ही बदल जाता है। क्यों? एवरीवन स्टार्ट्स फेवरिंग हिम, हर कोई उसकी तारीफ़ करता है, हर कोई उसका फेवर करता है, उसकी मदद करता है। अच्छा वो उसके इर्द गिर्द उड़ते हैं, उसको खाना देते हैं, डॉग फिश का उसको स्क्रैप्स देते हैं खाने के लिए, और ये क्लियरली हमें ये मैसेज देता है फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द बोल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ एज हिज फर्स्ट फ्लाइट विच शोज कॉज एंड इफेक्ट। अब बेटा कॉज एंड इफेक्ट का कहता है फर्स्ट पैराग्राफ में जो सेंटेंस है वो बताएं। इसमें लाइंस में आपको बताता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में है तो हमारे पास ये लाइन है, ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। ठीक है, ये कॉज था कि वो फ्लाइट ले ही नहीं रहा था। क्यों? कि उसे ये यकीन था कि उसके पर कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। अब इफेक्ट इसका क्या हुआ? इट्स इफेक्ट इज सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। अब इफेक्ट क्या था? यही वजह थी, जब उसको अपने परों पे यकीन नहीं था, उसने अपना सर झुकाया, ब्रिंक ऑफ द लेज से आके बिल्कुल नुक्कर पे, किनारे पे आके उसने जो उसका लेज था, जो घोंसला था, जो चट्टान का उमूदी हिस्सा था, वहाँ पे आके देखा कि नहीं मैं नहीं उड़ सकता, वो वापस वहीं पे चला गया जहाँ पे वो रात को सोया था। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इन दिस paragraph. Hopefully you might have got the idea which I wanted to convey. If you have any confusion, any problem, you may ask me in the comments. I'll be there to answer you. Till our next lecture beta, you have to take care of yourself and mind it that your homework is question number 8 and 9 plus MCQs of its country for me. Is that clear to you? Till our next lecture, take care of yourself. Allah Hafiz.